How are you all? I hope that you all are fit and fine. And now I am going to tell you about some vocabularies. Okay, so in previous classes we learned so many rules and we did revision of many basic things, and by these rules and basic things we got to know that really what is the concept behind the rules of English language. Okay, so now we will discuss vocabulary. Before starting, I want to tell you that vocabulary is really very important thing. It doesn't matter that for which exam you are applying. Okay, if you are for banking or for your SSC, for MBA entrance exams, or for any other kind of exam, or if you are looking forward for your personality development, then also vocabulary plays a very important role, because vocabulary is asked in many ways. Okay, it can be asked, the question can be arised from anywhere, as like from antonyms, synonyms, or if we talk about the reading comprehension. In reading comprehension also, if you are not able to know the meaning of sentence, how would be you able to answer or understand any paragraph? If we talk about the daily course of action, whatever activities we are performing in our daily life, there also vocabularies plays a very important role. Or while speaking also, whenever you are speaking, the words which you are using in your conversation, it plays a very important role, and it make you impressive. Suppose that if you are using a very nice words, then automatically your standard of speaking will rise up, and then you can see that these vocabularies are really very important in speaking for examination point of view and for our daily conversation also. Okay, so today we will discuss some vocabularies in many forms. We will discuss about the root words also, and how to memorize these things, and how to make these vocabularies long lasting. These tips also I will discuss you in this session. Okay, so moving on to the slide, here you can see I would like to start this session with a very positive thought for you all. Here you can see, keep going on. Everything you need will come to you at the perfect time. Yes, it is true. It is indeed true. Whatever we need or whatever we wish to have, it will automatically come to us if we will concentrate upon our work. The thoughts which have been told in Bhagavad Gita, or the thoughts which famous personalities are sharing with us, they are not just for listening or reading. We need to implement these thoughts in our life. हमें जैसी भी हम मेहनत करेंगे, जो भी हमारा हार्डवर्क होगा, एज पर दैट ऑटोमेटिकली रिजल्ट विल कम टू अस. जितनी हमारी मेहनत रहेगी उतना हमें रिजल्ट जरूर मिलेगा. इट इज फिक्स्ड. और अगर हम बहुत ज्यादा बस केवल रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, सपोज दैट आपने पढ़ाई कितनी की है ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और कभी कभी ये होता है कि हमने कितना पढ़ा है ये हम खुद भी नहीं जान पाते हैं. बिकॉज सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी बच्चे प्रिपेयर करते हैं, सबको लगता है अरे हमने तो इतना पढ़ा था फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, इतनी मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ. बट दिस इज नॉट द थिंग. ऐसा होता ही नहीं है कि हमने अगर उतनी मेहनत की होती तो हमारा सिलेक्शन डेफिनेटली होता. देयर वाज समथिंग मिसिंग. कोई 1% या कोई 2% हमारे अंदर कुछ ना कुछ रह गया होगा, देन ओनली वी नॉट गॉट सेलेक्टेड ओवर देयर. ओके, सो दिस इज द थिंग. We need to keep on going, and we need to brush up ourselves. We need to work hard. We need to know everything, and we need to work hard. Okay, that's it. Then result will come to us on the time. We don't need to be very hurried. Okay, हमें बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए ऐसे नहीं करना है कि कब होगा. अगर हम रिजल्ट पे फोकस करेंगे तब शायद हमें रिजल्ट ना मिले, लेकिन अगर हम अपने वर्क पे फोकस करें, हम अपनी मेहनत पे फोकस करें, देन ऑन टाइम यू विल रिसीव रिजल्ट एज पर योर हार्ड वर्क. ओके, सो मूविंग ऑन टू द vocabularies. Here you can see the first is, now I am going to discuss some root words.
वोकैबुलरीज को लर्न करने का मैंने फर्स्ट सेशन में भी आपको कुछ तरीका बताया था कि हमें कुछ प्रीफिक्स और कुछ सफिक्स रखने चाहिए, ठीक है। ये प्रीफिक्स और सफिक्स रखने से क्या होता है, प्रीफिक्स मीन्स प्री, दिस वर्ड प्री के बारे में मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे यूज होता है, बिफोर के लिए, ठीक है। किसी भी चीज के पहले लगता है प्रीफिक्स, एज यू कैन सी इन दीज ऑल वोकैबुलरीज, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर एंड ऑलरिकल्चर। इन सारे ही वोकैबुलरीज में आपने देखा होगा सबके लास्ट में कल्चर लगा हुआ है। लास्ट में मतलब सबके बाद में, इट मीन्स इट इज सफिक्स। जो चीजें आफ्टर होती हैं मतलब बाद में होती हैं, दैट इज सफिक्स, और जो वर्ड्स पहले लगे रहते हैं बिफोर, वो होते हैं प्रीफिक्स। ओके, सो हियर यू कैन सी सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर एंड ऑलरिकल्चर। इन दीज ऑल कल्चर इज सफिक्स ओवर हियर। और उसके अलावा जो हमारे इसके पहले जो वर्ड्स हैं जो सफिक्स है वो है सेरी, पिसी, विटी एंड ऑलेरी। नाउ हाउ टू लर्न दीज काइंड ऑफ वोकैबुलरीज। ऐसी वोकैबुलरीज को लर्न करने के लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। इन फर्स्ट क्लास आई टोल्ड यू दैट फर्स्टली वी नीड टू मेक अ ग्रुप। हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो दिस इज अ ग्रुप। ये किसका ग्रुप है, कल्चर का ग्रुप है। कल्चर मीन्स क्या होता है, इस किसी भी चीज को पालन, किसी भी चीज का बिजनेस करना या पालना, ठीक है। जैसे मछलियों को पालने का बिजनेस, ठीक है, सिल्क वॉर्म्स को पालने का बिजनेस। मतलब जब हम किसी एनिमल या किसी एक चीज को रखते हैं, उसका बिजनेस करते हैं और प्रोडक्टिव, उस स्पेसिफिक थिंग को प्रोडक्टिव बनाते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, दैट इज व्हाट कल्चर। ओके, तो ये कल्चर की मीनिंग हुई। अब कल्चर के आगे जो जो वर्ड लगे रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप समझ लेना है कि ओ दिस इज द मीनिंग। ओके, अब वैसे बोला सेरी कल्चर, सेरी मीन्स सिल्क वॉर्म एंड कल्चर मीन्स doing business for your own profit, or taming some animal or any living things and making it productive for our own profit, for our own benefit. Okay, so here you all can see sericulture means the production of raw silk by raising the silkworm. तो सिल्क by raising silk work, सिल्क वॉर्म को पाल के जब हम सिल्क के जो थ्रेड होते हैं उनको निकालते हैं तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है सेरीकल्चर। इन द सेम वे पिसी कल्चर, पिसी इज पिसी समथिंग रिलेटेड टू PISC। ओके, PISC इसका जो मीनिंग होता है, इसका रिलेशन हमारा होता है फिश से। ओके, तो जब हम फिश रियरिंग करते हैं, फिश ब्रीडिंग का जहां पे काम चलता है, उसे बोला जाता है पिसिकल्चर। In the same way, viticulture, viticulture is cultivation of grape vines. Culture की meaning हमने समझ ही लिया है, it means cultivation of something or rearing or taming something for your own profit. So in the same way here you can see that viticulture means cultivation of grapevine. In the same way, olericulture means the cultivation of edible plants, especially leafy and vegetable herbs. जब हम कुछ vegetable herbs को अपने पास रखते हैं, ऐसे प्लांट्स को एडिबल का मतलब होता है विच कैन बी ईटे। ओके, ईटेबल थिंग्स के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं एडिबल। सो हियर इट इज आई थिंक नाउ इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल हाउ टू लर्न दीज वोकैबुलरीज। इन वोकैबुलरीज को लर्न करने का जो एक बहुत अच्छा तरीका होता है, इट मीन्स दैट वी नीड टू मेक अ ग्रुप and we need to see that what is the suffix over here, what is the prefix over there, and as per that we are going to learn these vocabularies. Okay, now the meaning of these all are clear. Next I am going to tell you is horticulture, floriculture and arboriculture. Now the art and practice of garden cultivation and management. So this is also art for our जैसे nurseries जो होती हैं, ठीक है, nurseries में क्या होता है, प्लांट्स एंड प्लांट्स और गार्डन को प्रॉपर्ली कल्टीवेट करके रखा जाता है। क्यों कल्टीवेट करके रखा जाता है, ताकि हम उसको सेल करके अपना प्रॉफिट गेन कर सके। इन द सेम वे हॉर्टिकल्चर इज द आर्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग द गार्डन एंड द कल्टीवेशन एंड इट्स मैनेजमेंट। अगर हम गार्डन और कल्टीवेशन से रिलेटेड काम करते हैं, बिजनेस करते हैं जिससे हमें प्रॉफिट होता है, सो इट्स कम्स अंडर हॉर्टिकल्चर।
Now the next you can see is floriculture. Flori is very, flora and fauna, साइंस में आपने ये वर्ड सुना होगा flora and fauna. तो उसमें क्या आता है? फ्लोरा में आता है हमारे सारे flowers, trees और plants. ओके, इन द सेम वे फ्लावर जो वर्ड है बिल्कुल एकदम रिलेटेड यहाँ पे हमें इजीली दिखाई दे रहा है, FLOR, एंड वही स्पेलिंग हमारी होती है फ्लावर की भी, FLOR. तो इस तरीके से इसमें हम कनेक्शन कर सकते हैं और इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है द कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर. इन द सेम वे arboriculture, द कल्टिवेशन ऑफ ट्रीज एंड द shrubs. नाउ herbs and shrubs में क्या डिफरेंस होता है? herbs जो होते हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं विथ फ्लेक्सिबल एंड वेरी सॉफ्ट, उनकी जो ट्रंक्स नहीं होती हैं, उनमें उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं. ओके, और छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो हमारे होते हैं हर्ब्स. और जो श्रब्स होते हैं, श्रब्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें थिक और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस होती हैं, एज लाइक ट्री में ट्रंक होती है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फर्म होती है. तो ये सारे होते हैं हमारे ट्रीज एंड श्रब्स. EVS या एनवायरमेंटल साइंस में हमने ये पढ़ा था बचपन से, क्लास 1st 2nd में भी हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ ट्रीज और टाइप्स ऑफ प्लांट. तो उन टाइप्स ऑफ ट्रीज और प्लांट में हमने पढ़े थे श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड बुशेस, ट्रीज. ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या थी? हर्ब्स हमारे ऐसे प्लांट होते हैं जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट ब्रांचेस वाले होते हैं, सॉफ्ट स्टेम होती है उनकी, और जो हार्ड स्टेम वाले बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रीज. एंड श्रब्स जो होते हैं जो छोटे प्लांट की तरह होते हैं बट उनकी जो स्टेम होती है, ब्रांचेस होती हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत थिक होती है, हार्ड होती है. ओके, सो आर्बोरिकल्चर, कल्टिवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स.